یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچے اور کڈس بندی چینل ناظرین، پروگرام بچوں کی شام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ سب کو پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچے اور کڈس بندی چینل ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں ہوتے ہیں مختلف سیگمنٹس، جیسا کہ نعت، تلاوت، حذیفہ بھائی ہمارے پیارے صحابہ آئیں واقعہ سنیں، بزرگوں کی تاریخ، شامی بھائی نیوز لے کے آتے ہیں، اور فضیل بھائی ہمارے ساتھ آئیں عربی سیکھے لے کے آتے ہیں، باقی تلاوت والے بھائی بھی ہوتے ہیں اور نعت والے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی آپ کا نام کیا ہے پہلے تو؟ سعد الطاری۔ جی سعد بھائی، آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ الناس۔ جی سورۃ الناس کی تلاوت سنائیں گے، جی سنائیں۔ جی تو پیارے بچے اور کڈس بندی چاہیں گے ناظرین، آپ سب نے بھی بڑے ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک سننی ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی سعد بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی تو مندی چاہیں گے ناظرین اور پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت
کی وجہ سے 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اور اس دن کے اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک کے بعد روز ہم آپ سے کرتے ہیں آج کا سوال. تو آئیں بڑھتے ہیں آج کے سوال کی جانب. بچوں کی شان. جی آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں. 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب. بچوں کی شان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی بہادر حاضری نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو مرشد کے ساتھ جلد چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں، پروگرام کے شروع میں آپ سے سوال کیا تھا، وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. 4 مشہور آسمانی کتابوں کا نام بتائیں. 4 مشہور آسمانی کتابوں کا نام بتائیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز پروگرام بچوں کی شام میں شامل کرتے ہیں. جی کال دیجیے گا.
मेरा नाम मोहम्मद नौफिल आसिम है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपना मद्दी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, आपको अच्छा लगता है तो आप इसे देखने की दावत आम करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तअल्लम अल-लुगतल अरबिया, यानी आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफा हालक? अल्हम्दुलिल्लाह व कैफा अंतुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी फजल भाई, आज क्या करेंगे हम? आज हमारे जितने भी सेगमेंट हो चुके हैं उसमें हमने कई अल्फाज अरबी के सीख लिए हैं। तो ऐसा तो नहीं हो कि हम अल्फाज आगे बढ़ते जाएं और पिछला सबक भूलते जाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम पिछला सबक भी हमें याद रहे, हमें रिवाइज़ होता रहे, उसके लिए हमने वीकली 1 डे रिवाइजिंग का रखा है। यानी हर हफ्ते हम एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हम पूरे हफ्ते जो हमने अरबी के अल्फाज और जो जुमले सीखे होंगे इंशाअल्लाह उसको हम बसूरत मुकाबला और बसूरत कोई एक्टिविटी इंशाअल्लाह हम रिवाइजिंग करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज ही हमने एक छोटा सा मुकाबले की सूरत बनाई है। हमारे यहाँ 2 साथ हुज़ैफ़ा भाई और शाहमीर भाई, क्योंकि ये हमारे साथ डेली होते हैं, रोज़ होते हैं, तो इनको वो अल्फाज याद भी होंगे उम्मीद है। तो इनके दरमियान हमने रमज़ान भाई एक मुकाबला रखा है। तो बढ़े अपने मुकाबले की तरफ। तो इसकी बरकत ये होगी इंशाअल्लाह कि जो अल्फाज हमने अभी तक याद कर लिए हैं, अभी तक पढ़ लिए हैं, अगर वो अल्फाज आप भूल गए होंगे तो आज के इस मुकाबले की बरकत से इंशाअल्लाह वो अल्फाज आपको दोबारा से याद हो जाएंगे। अब देखते हैं कि इनमें से कौन आगे बढ़ता है, कौन ज़बर होता है, कौन ज़ेर होता है। ज़ेर व ज़बर हमारा एक सिलसिला भी आता है। तो आज हमारे इस सेगमेंट में कौन ज़बर है, कौन ज़ेर है, आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर इंशाअल्लाह आपको कुछ अल्फाज दिखाए जाएंगे। तो पहले हम हुज़ैफ़ा भाई से पूछेंगे, पहले बताएं कि स्क्रीन पर आपको क्या नज़र आ रहा है? पानी। पानी है और गिलास है। बताएं कि अरबी के अंदर इन दोनों को क्या कहा जाता है? माँ और कास। जी, इन्होंने कहा पानी को, माँ किसको कहा जाता है? पानी को। और कासुन किसे कहा जाता है? गिलास को। गिलास को। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो एक, तो यूं कह लें 2, जितने जवाब देते रहेंगे उतने पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो 2 जवाब दिए तो इनके 2 पॉइंट हो गए। अगली पिक्चर दिखते हैं कि हमारे पास क्या है। जी हुज़ैफ़ा भाई, आप ही से सवाल है। बैग को अरबी में हकीबा। जी, स्क्रीन पर आपको बैग नजर आ रहा है और अरबी में बैग को कहते हैं हकीबा। तो हुज़ैफ़ा भाई के हो गए 3 पॉइंट। क्या कहेंगे सब? यानी जोर से हो ताकि यानी लगे कि आप हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सब? जी, अब बारी है हमारे शाहमीर भाई की। जी दिखाएं, क्या लिखा हुआ है शाहमीर भाई? चाबी। चाबी। बताएं अरबी में चाबी को क्या कहा जाता है? हमारे रमज़ान भाई भी हाथ उठा रहे हैं कि इनको भी मालूम है कि अरबी में क्या कहा जाता है। पहले हम पूछते हैं शामिर भाई से। जी, चाबी को अरबी में मिफ्ताहुन कहा जाता है। रमज़ान भाई आप इनके साथ हैं या जवाब गलत है? जवाब दुरुस्त है। जी, शामिर भाई ने कहा चाबी को अरबी में मिफ्ताह कहा जाता है। इनका जवाब दुरुस्त है और 1 नंबर इनको भी हासिल हो गया है। सुभान अल्लाह। जी, अगला दिखाएं कि ताले के साथ चाबी होती है। चलें बताएं हुज़ैफ़ा भाई। ताले को अरबी में कुफलुन कहते हैं। ताले को अरबी में कुफलुन कहते हैं। जवाब शाहमीर भाई का बिल्कुल दुरुस्त है। तो 2 नंबर हो गए शाहमीर भाई के और 3 नंबर है हमारे हुज़ैफ़ा भाई के। जी, अगली तस्वीर, अगला लफ्ज़ आम। आम का सीज़न भी है, आम खाए भी जा रहे होंगे। जी शाहमीर भाई। आम को शायद से कहते हैं मांझू। इन्होंने कहा शायद इसे मांझू कहा जाता है। आप में से कोई बताएगा जो यहाँ बैठे हुए हैं? आप बताएंगे? जी, आपके पास माइक नहीं है, माइक दिखाएं। जी, आप बताएं कि आम को अरबी में क्या कहते हैं? मांझू। आपने कहा मांझू, शाहमीर भाई ने भी कहा मांझू और जवाब
दोनों का दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो 3 नंबर हो गए हुज़ैफा भाई के और 3 नंबर हो गए शामिर भाई के। अब देखते हैं कि स्क्रीन पर आपको क्या नजर आता है। जी, यानी पहले एक पिक्चर थी, फिर उर्दू के अल्फाज थे, अब हैं अरबी के अल्फाज। आपको इसका तर्जुमा बताना है, ट्रांसलेट करना है। जी हुज़ैफा भाई पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? आकुलुल मांज, आकुलुल मांजू, तर्जुमा करें इसका। मैं आम खा रहा हूँ। मैं आम खा रहा हूँ। इन्होंने ट्रांसलेट किया और बिल्कुल सही ट्रांसलेट किया, और इस तरह हुज़ैफा भाई के हो गए 4 नंबर। क्या कहेंगे सब? जी माशाअल्लाह। अगला लफ्ज दिखाएं। माइज। अभी अभी हमारे पास बहुत सारे माइज थे कुछ दिनों कबल। जी बताएं। माइस को उर्दू में बकरा कहते हैं। जी रमजान भाई सही कह रहे हैं। ये माइस को उर्दू में बकरा कहा जाता है। जवाब इनका भी दुरुस्त है। नंबर कितने हो गए हुज़ैफा भाई के? 5 नंबर हो गए। और शामिर भाई के 3 नंबर हो गए। जी अगला लफ्ज खरूफ। माइज, खरूफ। जी खरूफ को उर्दू में दुम्बा कहते हैं। दुम्बा कहते हैं। आप क्या बताएंगे? जी दुम्बा कहते हैं। रमजान भाई? ये दुम्बा कहते हैं। जी खरूफ का माना होता है उर्दू में दुम्बा, जिसको कुर्बानी में ज़िबा भी किया जाता है। और यूं हमारे हुज़ैफा भाई ने 3 सही जवाब दिए और कुल कितने नंबर हो गए इनके? 6 नंबर हो गए। अब बारी है शामिर भाई की। जी दिखाएं, क्या दिखाएंगे आप इनको? अरे ये तो दुम्बा ही नजर आ गया है। बताएं शामिर भाई क्या कहते हैं अरबी में इसको? दुम्बे को अरबी में खरूफ ही कहते हैं। दुम्बे को अरबी में खरूफ कहते हैं, और इनका जवाब दुरुस्त है, और इनके हो गए 4 नंबर। जी अगली तस्वीर दिखाएं। जी बहुत ऊंचा सा एक जानवर है, गर्दन भी लंबी है। बताएं इसको बताएं उर्दू में क्या कहते हैं? आप में से कौन बताएगा? चलें आप बताएं। उर्दू में भी अरबी में भी। नहीं, उर्दू में बताना है आपको। जी आप बताएं उर्दू में क्या कहते हैं इसे? ऊंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, पता है आपको? कैमिल कहते हैं। अब बताएंगे हुज़ैफा भाई के इसे अरबी में क्या कहते हैं। जी हुज़ैफा भाई। शामिर भाई। जी शामिर भाई। इसे जमल इसे जमल कहते हैं। उर्दू में ऊंट कहते हैं, इंग्लिश में कैमिल कहते हैं, और अरबी में इसको जमल कहते हैं। और जवाब शामिर भाई का दुरुस्त है। अगली तस्वीर क्या नजर आ रहा है शामिर भाई? गोश्त शायद। गोश्त। जी आपका जवाब दुरुस्त है। बताएं इसको अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में गोश्त को क्या कहा जाता है? गोश्त को अरबी में लहम कहा जाता है। लहमुन कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है। यूं शामिर भाई ने भी 6 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी अब देखें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी दिखाएं आगे। अब बारी है हुज़ैफा भाई की। जी चाबी पहले हो चुकी है। अगली तस्वीर, बल्कि नहीं, हाँ वो तो आपसे हुई थी। जी चलें आप बताएं। चाबी को अरबी में क्या कहा जाता है? मिफ्ताहुन। चाबी को अरबी में मिफ्ताह कहा जाता है। जी अगली तस्वीर दिखाएं। ताला। जी हुज़ैफा भाई। ताले को अरबी में कुफ्लुन कहते हैं। कुफ्लुन कहा जाता है। जी अगली तस्वीर। आम। जी हुज़ैफा भाई। मांजू। आपसे पहले ये हुआ था? आपसे हुआ था। चले हाँ वो रिवाइजिंग है, तो वो अल्फाज हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि वो अल्फाज हमें याद हो जाए। ताले को बोलते हैं कुफ्लुन, चाबी को क्या कहते हैं? मिफ्ताहुन, और आम को मांजू। चले यूं हमारे हुज़ैफा भाई के हो गए 9 नंबर। अब देखते हैं शामिर भाई क्या करते हैं। जी तस्वीर दिखाएं। आपको इसकी उर्दू बतानी है शामिर भाई। कासुन गिलास को कहते हैं। कासुन गिलास को कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अगली तस्वीर। माउन। आप में से कोई बताएगा? माउन। आप रमजान भाई। चले पहले आप बताएं, फिर इनकी तस्दीक या तकजीब कीजिएगा। जी पानी को अरबी में माउन कहते हैं। रमजान भाई आप बताएं। जवाब दुरुस्त है। हमने जब माउन सीखा था तो हमने एक तबरुक वाला पानी पिया था। कौन सा पानी पिया था? आबे जमजम पिया था। जी अरबी में माउन पानी को कहा जाता है। जी अगली तस्वीर। हकीबा।
हकीबा बैग को कहा जाता है? हकीबा बैग को कहा जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। तो यूँ हमारा ये मुकाबला टाई हुआ। हमारे जो हुज़ैफा भाई हैं उन्होंने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए, और जो हमारे शाहमीर भाई हैं उन्होंने जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दिए। और यूँ हमारे तकरीबन ये 15 कलिमात, 15 अल्फाज हमने अरबी के अभी तक सीख लिए हैं। तो तमाम बच्चे जो हमारे साथ मदनी चैनल पर हैं वो भी अल्फाज याद करें। जी रमज़ान भाई, आपको भी कुछ रिवाइजिंग हुई होगी माशाअल्लाह। जी तो मदी चाहिए नाज़रीन, प्यारे बच्चे आए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ, देखते हैं आप हमसे क्या कह रहे हैं। जी कॉल दीजिएगा। मेरा नाम नूरुलैन है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब है 4 आसमानी किताबों के नाम बताऊंगी, इंजील, ज़बूर, तौरात और कुरान मजीद। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपको जवाब मालूम हो जाएगा। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मिनाहिल फातिमा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीको उमर जन्नती 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 जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की और नारे लगाए। हमने भी सुबह से, हमने जब से प्रोग्राम शुरू किया तब से नारे लगाए। हर सहाबी या नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी या नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीको उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, अली और मुआविया जन्नती जन्नती। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अहमद सिद्दीकी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपको सवाल का वक्त है, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल की। इंशाअल्लाह दोस्त जवाब आपको प्रोग्राम के आगे में बताएंगे। जी तो मत दीजिए नाज़रीन, अब प्यारे बच्चों आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की शाम, प्यासा कौआ, प्यासा कौआ, प्यासा कौआ आया उड़ता उड़ता मटके पे, प्यासा कौआ आया उड़ता उड़ता मटके पे, पानी पीने को फिर डाला मुझे मटके में, पानी पीने को फिर डाला मुझे मटके में, काएं 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 काएं, पानी को देखा तो बहुत नीचे था, काएं काएं काएं, पानी को देखा तो बहुत नीचे था, काएं काएं काएं, कौए साहिब देख के मुरझाए, काएं 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 काएं, फिर अचानक कौए को आइडिया आया, काएं काएं काएं, फिर अचानक कौए को आइडिया आया, जाके कहीं से कंकरिया लाया, पानी में कंकर जाता रहा, पानी ऊपर आता रहा, कौआ खुश खुश पानी पी के सैर हो गए। बच्चों अगर कुछ करना चाहे तो रास्ता निकल ही जाता है, जो मेहनत से जी नहीं चुराता वो कामयाब रहता है। बच्चों की शाम। जी तो मत दीजिए नाज़रीन, आपने देखा हमारा सेगमेंट नज़म टाइम, और इसमें हमने एक पोयम सुनी। जी तो मत दीजिए नाज़रीन, प्यारे बच्चे आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है प्यारे सहाबा। बच्चों की शाम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुज़ैफा भाई, आज अब मैं क्या बताऊँ? आज मैं आपको हज़रत हमज़ा बिन अम्र अस्लमी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, आज हम प्यारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के सेगमेंट में एक बहुत ही प्यारे सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सुनेंगे, और मैं आपको उनकी करामत भी सुनाऊंगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हज़रत हमज़ा बिन अम्र अस्लमी रज़ी अल्लाह अन्हु की।
ان کے والد کا نام عمرو تھا جو ابن اویمر کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بیان کی۔ 61 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 80 ایئرس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آئیے اب میں آپ کو حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ کی کرامت سناتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں گئے تھے کہ اتفاقاً سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچھڑ گئے۔ سخت اندھیری رات میں وہ راستہ بھول گئے، کسی کو راستہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ رات کا وقت تھا اور اندھیرا تو بہت ہی زیادہ تھا۔ اس پریشانی میں ایک دم اچانک حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ کی 5 انگلیاں اس قدر روشن ہو گئیں کہ ان کی روشنی میں سب کو راستہ نظر آ گیا اور سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر حذیفہ بھائی، ہم ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں آپ کا بھی پروگرام ہے، اب تو یہ اللہ پاک آپ کو عالم بامن بنایا۔ آپ نے ہمیں حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا۔ جی نعرے لگانے ہیں، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی عثمان غنی جنتی جنتی، علی اور معاویہ جنتی جنتی۔ جی تو متی چاہیے ناظرین و پیارے بچوں، پروگرام کے شروع میں آپ سے ایک سوال کیا تھا جو کہ یہ تھا کہ 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں، اور اس کا صحیح جواب ہے توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ جنہوں نے صحیح جواب دیا اللہ پاک ان کو قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو مدنی چاہیے ناظرین و پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے تمام سیگمنٹس مکمل ہوئے اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔